Hello everyone. Today's new chapter is chapter 4 and the chapter name is the cubes and the cube roots. Okay. In the previous chapter we did the square and the square roots. Square denote by the 2 times. Squaring denote by the 2 times and the cube denoted by the 3 times. Okay. Before starting this is the shape of the cube. Cube containing length, breadth and the height, because cube is the 3D shape and 3D shapes having the 3 measurement. One is the length, height and the breadth, and all having the same measurement. If there is a length is the 4 centimeter, then breadth and height also the same centimeter, means 4 centimeter. Okay. So before starting this exercise you have to draw this table on your fair notebook 4.1. okay. Same as it is the square, just we will write the only 2 times. जैसे 1 into 1 is 1, 2 2s are 2 square is 4, but here is 2 cube is 8, because we will multiply the 2 3 times. This is called the cube. 2 2s are 4, 4 2s are 8. okay, but in squaring we write only 2 times, 2 2s are 4. And this one is also the reverse section 4 and 2. This called the square and this one is the cube root. This is the cube and this one is the cube root. okay. मैंने आपको पहले भी बताया था इसका रिवर्स सेक्शन है ये. हमने स्क्वायर में भी रिवर्स सेक्शन किया था ना. अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूँगी तो 2 आ जाएगा. ऐसे ही मैं 8 का, लेकिन अगर आप इसको 8 को अगर ऐसे एज इट इज़ खाली ऐसे लिखोगे ना, आपको इसका मतलब आपने स्क्वेयरिंग करी है, सॉरी क्यों स्क्वायर रूट किया है. आपको क्या करना होगा, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो ये स्क्वायर रूट में काउंट होगा. अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना यहाँ पे, ये क्यूब रूट में काउंट होगा. ठीक है, ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आप इसको. ठीक है. सो यू जस्ट राइट दिस टेबल ऑन द योर ऑन योर फेयर नोटबुक अप टू 20. 7 cube is 343, 10 cube is 1000, 15 cube is 3375. Clear? So you just run the table also. There are some properties also. You just read this. These are the so simple. The number having 1, 4, 5, 6, 7 at the ones. Ones means जो last digit पे होता है. जैसे मान लो 47 है, 46 है. This one is called the ones digit. This one is called the ones place having the same digit at the ones place of their respective cube. अगर आप इसका क्यूब करोगे ना, जब आप जो भी नंबर आएगा उसका वंस प्लेस फिर भी 7 ही रहेगा, सॉरी 6 रहेगा इन नंबर्स का. ठीक है. सो द नंबर विथ 3 एट वंस प्लेस विल हैव द 7. अगर किसी के कोई भी नंबर ले लो, मान लो 13 लिया, 13 का वंस प्लेस है, जब आप इसकी क्यूबिंग करोगे कोई भी नंबर होगा तो लास्ट में 7 आएगा. चेक कर लेते हैं. ये देखो, हाँ ये देखो लास्ट में 7 ही आया. 13 का किया है तो लास्ट में 7 ही आया. ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप थोड़ा रीड आउट करना. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1. फाइंड द क्यूब ऑफ द फ्लोइंग. अगेन एज यू नो क्यूब मीन्स द मल्टीप्लाई द 3 टाइम्स. सो वी विल मल्टीप्लाई 0.58 3 times. 46 also multiply up to 3 times. This also multiply up to 3 times and this one is also up to 3 times. One more thing, if there is any negative number, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और अगर आप उसकी क्यूबिंग कर रहे हो तब वो नंबर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि उसको आप ओड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो. और आपको पता है कि ओड टाइम मल्टीप्लाई करने पे सेम ही साइन रहता है. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा. ठीक है. तो ये नंबर नेगेटिव है तो ये नंबर नेगेटिव ही रहेगा. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स चेक द 4.1. फाइंड द क्यूब ऑफ द फ्लोइंग. 0.53 क्यूब मीन्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एंड द नंबर कम्स हेयर. 46, when you multiply 46, 46, 46, the number comes here. Minus 44.5, so minus 91.125 comes. 925, this is the mixed fraction, so you have to change into improper fraction. 5 9s are 45, 45 plus 2, 47, 47 divided by 5 and cube. You must multiply the 47 3 times and write the number here, and 5 times multiply is 125.
Clear? Now next is you already did these questions in the chapter 3rd. Look at this. Cut the question number 2. What is the smallest number? वो smallest number बताना है that should be multiplied to each of the following number to get a perfect cube. अभी ये जो आपको नंबर्स गिवन है ना, ये 432, 37044, 3686, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा रह जाता है कि परफेक्ट क्यूब बनते बनते रह जाता है. एक छोटे से नंबर की वजह से वो परफेक्ट क्यूब बनता रह जाता है. ठीक है. अब वो कह रहा है कि अगर वो नंबर बताओ, अगर मैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता. ठीक है. तो चलो चेक करते हैं. 432 आपको जब मैं ही करूँगी ना, आपको पिछला सारा रिवाइज़ हो जाएगा, मतलब कि सारा आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हमने ये पहले भी किया हुआ है. ठीक है. अब 432 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सबको ही पता है कैसे करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम नंबर से ही हमने सिर्फ इसको डिवाइड करना होता है. ओनली प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? द नंबर्स ओनली डिवाइडेड बाय वन सेल्फ. अपने ही नंबर से जो डिवाइड होते हैं, सिर्फ अपनी टेबल पे आते, किसी और के टेबल पे नहीं जाते. ठीक है. 432 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 216 आया. ओके. अगेन वी डिवाइडेड बाय 2, सो 108 कम्स. अगेन डिवाइडेड बाय 2, सो 54 कम्स. अगेन डिवाइडेड बाय 2, सो 27 कम्स. अब 27 तो 3 के टेबल पे ही आएगा, 2 के टेबल पे नहीं आता ना. सो डिवाइडेड बाय 3, सो 9 कम्स. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1. ठीक है. ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. अब 432, अब जितने भी 432 को हमने डिवाइड किया है, जितने भी प्राइम नंबर है उसको हम यहाँ लिखते हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं. स्क्वायर की बात करी तो हमने 2 के पेयर्स बनाए थे. अब हम क्यूब की बात करें, हम यहाँ 3 के पेयर्स बनाएंगे. ये देखो 432, ये मैंने सभी नंबर्स लिख लिए यहाँ पे. ठीक है. 3 का पेयर बनाया, 3 टाइम्स बन गया. ये 2 का पेयर बनाया, 3 टाइम्स बन गया. अब यहाँ पे एक सिंगल 2 रह गया. इसको कितने 2 की और ज़रूरत थी? अगर इसको 2 टाइम्स और 2 मिल जाते, इसको अगर 2 टाइम्स और 2 मिल जाते तब इसकी पेयरिंग बन जाती है ना. अब वो यही तो कह रहे हैं, वी नीड 2 more 2s. हमें 2 टाइम्स और 2 चाहिए थे, यानी हमें टोटल कितना चाहिए था? 2 2 4. यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 4. अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. सो हैंस 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू गेट द परफेक्ट क्यूब. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नेक्स्ट करोगे तब आपको और इजी हो जाएगा. 37044 अगेन डिवाइडेड बाय 2, दिस नंबर कम्स. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 9261 कम्स. डिवाइडेड बाय 3, 3087 कम्स. डिवाइडेड बाय 3, 1029 कम्स. अगेन डिवाइडेड बाय 3, 343 कम्स. एंड 343 कम्स डिवाइडेड बाय 7 इज़ 49. 49 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 1. So these are the prime numbers. Again you just write these numbers, pairing, make the 3 pairs. 7 की पेयरिंग होगी, ये 3 की पेयरिंग होगी, 2 की रहेगी, 2 की पेयरिंग रहेगी. अगर यहाँ पे एक सिंगल 2 होता तो इसकी पेयरिंग बन जाती. सिर्फ एक क्या था? वी नीड ओनली 1 टाइम 2. सिर्फ हमें 1 टाइम ही 2 चाहिए था. हैंस 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू गेट द परफेक्ट क्यूब. ईजी है ना. So now next is the again 36864. 36864 divided by 2, 18432. When you divided by this number, 9216 comes. Again divided by 2, 4608. Again divided by 2, 2304. Again divided by 2, 1152. Divided by 2, 576. Divided by 2, 288. Again divided by 2, 144. Divided by 2, 72. Again divided by 2, 36. Again divided by 2 is 18. Again divided by 2 is 9. And 9 comes on the table of 3. 3 divided by 9 is 3 and 3 divided by 3 is 1. So these are the prime numbers. You just write here. Okay. Now make the pair. Make one pair and make another pair and another pair. This one only 3. Just look at this. Only one number is left here. अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो इसकी पेयरिंग हो जाती. So we need only 1 time 3. सिर्फ हमें एक 3 की नीड थी. So hence 3 is the smallest number to get perfect cube. सिर्फ एक 3 होता तो एक परफेक्ट क्यूब मिल जाता. क्लियर.